Hello guys, welcome back to another video. Yesterday we have started Indian polity chapter 1. So today we are going to continue our chapter 1, historical background. So the very first topic of this lecture is Charter Act of 1833. The features of this act were as follows. It made the Governor General of Bengal as the Governor General of India and vested in him all civil and military powers. Thus, the act created for the first time Governor of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India, Lord William. All civil and military powers. Thus, the act created for the first time Government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India. Let me explain. इस एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसको डेजिग्नेशन मिली थी बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 उसको बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बजाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेट कर दिया गया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आता है। डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास of their legislative powers. The Governor General of India was given exclusive legislative powers over for the entire British India. The laws made under previous acts were called regulations, while laws made under this act were called as acts. क्या डिफरेंस है कि जो गवर्नर जनरल पहला तो ये पॉइंट है इसके अंदर कि जो गवर्नर जो बॉम्बे और मद्रास के थे अब उनके पास जो है लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं रही। लेजिस्लेटिव सारी पावर जो थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई थी। और पहले के जो एक्ट्स होते थे, जो भी प्रीवियस एक्ट्स होते थे उनको रेगुलेशंस कहा जाता था। अब जो भी लॉज आएंगे उनको कहा जाएगा एक्ट्स। It ended the activities of the East India Company as commercial body, which became a purely administrative body. इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी कमर्शियल फंक्शन था उसको अबॉलिश कर दिया और जो कंपनी थी वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। इस एक्ट के जरिए द चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड स्टेटेड दैट द इंडियंस शुड नॉट बी डिबेट फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस। मतलब इस एक्ट ने पहली बार अटेम्प्ट किया था कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है सभी इंडियंस के लिए भी मतलब ओपन हो और इंडियंस को ऐसी पोजीशन लेने के लिए डिबेट ना किया जाए, मतलब वंचित ना रखा जाए उनको, ठीक है। लेकिन ये जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस प्रोविज़न को अपोज किया और ये इफेक्ट में नहीं आया। है चार्टर एक्ट ऑफ 1853. The features of this act were as follows. It separated for the first time legislative and executive functions of the Governor General's Council. It provided for addition of 6 new members called legislative councillors to the council. In other words, it established a separate Governor General's Legislative Council which came to be known as Indian Legislative Council. Thus, the legislation for the first time was treated as a special function of the government requiring special machinery and special process. It introduced an open competition system for selection and recruitment of civil servants. The combined civil services was thus thrown open to the Indians also. Accordingly, the Macaulay Committee, the Committee on the Indian Civil Service, was appointed in 1854. इस एक्ट देखो, इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने अटेम्प्ट किया था कि जो सिविल सर्विसेज हैं वो इंडियंस के लिए भी ओपन हो, लेकिन वो समहाउ वो पास नहीं हो पाया था। लेकिन इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया सिविल सर्विसेज को इंडियंस के लिए भी, ठीक है। और किसकी कमेटी अकॉर्डिंगली द मकौली कमेटी, द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस वाज अपॉइंटेड इन 1854. इसने इट एक्सटेंडेड कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन. This was a clear indication that the company's rule could be terminated at any time by the parliament liked. This for the first time local representation in Indian Central Legislative Council. Of the 6 new legislative members of the Governor General's Council, 4 members were appointed by local provincial governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. Rule 1858 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड ये कब से कब तक चला था, 1858 to 1947 टिल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो पहला एक्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके फीचर्स क्या हैं, लेट्स सी। This significant act was enacted in the wake of the revolt of 1857, also known as the First War of Independence और सिपाही मुटिनी। इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया और सारी पावर ट्रांसफ़र कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन को। क्या फीचर्स थे, इसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया वाइसरॉय ऑफ इंडिया।
He, Viceroy, was the direct representative of the British Crown in India. Lord Canning became the first Viceroy of India. इसने जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया, और क्योंकि इससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो ऑफिस था उसको अबॉलिश कर दिया, और कोड ऑफ डायरेक्टर दोनों को ही। इसने एक नई ऑफिस को क्रिएट किया जिसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और उसके अंदर सारी जितनी भी अथॉरिटी थी वो दे दी उसको, ताकि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चल सके। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था, और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। इसने एक 15 मेंबर की काउंसिल को इस्टेब्लिश किया ताकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको असिस्ट कर सके। द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल. It constituted the Secretary of State in Council as a body corporate capable of suing and being sued in India and in England. Indian Councils Act of 1861. The Indian Councils Act of 1861 is an important landmark in the constitutional and political history of India. इस एक्ट के क्या फीचर्स थे? इस एक्ट ने पहली बार अटेम्प्ट किया था इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने का। इसने वाइसरॉय की इट दस प्रोवाइड दैट द वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। In 1862, Lord Canning, the then Viceroy, nominated 3 Indians to his legislative council: the Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Rao. It initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidencies. It thus reversed the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773 and reached its climate under the Charter Act of 1833. For the Viceroy to make rules and for the more and convenient transaction of business in council, it gave also रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंदर अंडर दिस अ मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड वाज ऑथोराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट। जो वाइसरॉय था उसको एम्पावर किया कि वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है, ठीक है, 6 मंथ के लिए। So this was our discussion for today. Tomorrow we'll continue with our next pages. Okay, thank you.